السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز کریں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ جسے تو آسانی دے دے اسے کوئی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی چیمبر نے عید تک پیر سے ہفتے 6 روز کے لیے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چیئرمین بی ایم جی سراج تیلی نے کہا کہ رمضان کے آخری ہفتے میں لاک ڈاؤن ختم کر کے دکانوں اور شاپنگ مالز کو 24 گھنٹے کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت دی جائے۔ لاک ڈاؤن میں پیر سے ہفتے تک 6 روز کے لیے مکمل نرمی کرنی ہوگی۔ 24 گھنٹے دکانیں کھولنے سے دکاندار نقصانات کا کسی حد تک ازالہ کر پائیں گے۔ کراچی والے بنا کسی پریشانی اور جلد بازی کے کمرشل مارکیٹس میں جا سکیں گے۔ سراج تیلی کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت عید الفطر کی چھٹیوں سے لے کر 31 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کو دوبارہ نافذ کرتے۔ 1 جون سے صورتحال کا جائزہ لے کر تاجروں اور دکانداروں کو پیر سے جمعرات کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار لاک ڈاؤن برقرار رہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں 1 میٹر سماجی فاصلہ رکھنے کا کہا، کوئی دوڑ لگانے کا نہیں۔ شہریوں نے تعاون نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تاجر برادری نے بھی ایس او پی پر عمل نہیں کیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ It's very unfortunate، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو کمٹمنٹ تھے اس پہ مکمل عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ایس او پیز کی یہی وائلیشن رہی تو کورونا کا جو اسپریڈ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ہم بارہا اپنی تاجر برادری کو ان کی ذمہ داری، ان کی اس کمٹمنٹ کا احساس بھی دلا رہے ہیں، ان کو ریمائنڈر بھی دے رہے ہیں، ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ اور ایس او پیز بھی کیا تھے؟ میں اپنے پبلک سے براہ راست مخاطب ہو کے یہ گزارش بھی کر رہا ہوں، استفسار بھی کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو یہ کہا ہاپی کے مطالبے پہ، ہاپی کی سہولت کے لیے، کہ جو ایس او پی ہے اس میں آپ نے ماسک پہننا ہے۔ ہم نے کتھن یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے، کہ جو باری بھی ہوگا، جو قیمتی بھی ہوگا، یا شارٹیج کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھی اور عام لوگ اس کو نہیں پہن پا رہے، اس میں کوئی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ ہم نے صرف ماسک کا کہا جو ایک کپڑا ہے، ساتھ یہ بھی کہا 18 اپریل کو نوٹیفکیشن ہم نے جاری کیا کہ ماسک نہیں ہے، آپ کوئی بھی کپڑا، مفلر، شال، چادر، کچھ بھی آپ اپنے ناک منہ پہ ڈانپیں تاکہ آپ خود بھی بچ سکیں کورونا سے اور باقی لوگ بھی آپ سے محفوظ رہیں، کورونا سے محفوظ رہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگر کراچی کا ٹریک کھلے گا تو ٹرینیں چلیں گی۔ ریلوے صرف پنجاب نہیں پورے پاکستان کی ہیں، صوبوں کے ماتحت نہیں۔ بسز، جہازوں کو اجازت دے دی گئی، ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ غریب کی سواری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بڑی عید سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا۔ ریلوے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پرسوں تیاری رکھیں، یا پرسوں ہم ہمیشہ اس عید تک ٹرین نہ چلانے کا فیصلہ کریں گے یا پرسوں ہم ٹرین چلائیں گے۔ صرف عمران خان سے مجھے ملاقات کا انتظار ہے۔ میں کسی صوبوں کے متحد نہیں ہوں، عمران خان کے متحد ہے۔ پاکستان ریلوے کسی کے متحد نہیں، اللہ کے بعد عمران خان کے متحد ہے اور اس کے بعد میرے متحد ہے۔ اور میں کوئی تھکا ہوا وزیر نہیں ہوں، میرے کوئی رنگ پسٹن نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ساری سواریوں کی اجازت دیں اور ریل کو اجازت نہ دیں۔ تاجر برادری ہو جائے ہوشیار، کاروبار کرنا ہے تو حکومتی ایس او پیز پر خود عمل کرنا ہے، لیکن دوسروں سے بھی عمل درآمد کروانا ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں دکانداروں کے خلاف انفرادی طور پر کارروائی کرنے کی بجائے پوری مارکیٹ کو سیل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کرونا وائرس کے باعث پیدا صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ محکمہ صحت کے سیکرٹریز، ڈی سیز اور آر پی اوز نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایس او پیز جاری کیے جائیں گے۔ پیر سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الاضلاع پبلک
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हफ्ते में 4 दिन कारोबार की इजाजत है, 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इजलास में अगले हफ्ते से चर्चों में इबादत की इजाजत का फैसला भी किया गया है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। खबर थी आपको मलेशिया की जेलों में कैद 250 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। मलेशिया की जेलों में कैद पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए हैं। मलेशिया की जेलों में कैद 250 पाकिस्तानी कैदी मलेशियन एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचे हैं, जबकि पाकिस्तानी कैदियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई और करंटीना रवाना कर दिया गया। कोलालमपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशों से कैदियों की रिहाई मुमकिन हुई है और ईद से कबल 3 फ्लाइट्स के जरिए तमाम पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। अंदरूनी मुल्क फिजाई ऑपरेशन तो बहाल हो गया, लेकिन मुसाफिरों को लोड कम होने की वजह से ज़ायद किरायों का सामना करना पड़ेगा। कौमी एयरलाइन पर कराची ता इस्लामाबाद लाहौर सफर करने वालों को कम से कम यकतरफा किराया बशमूल टैक्स 22,826 रुपए अदा करना होगा। लॉकडाउन और महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ न मिल सका। मुल्की फजाई ऑपरेशन तो बहाल, मगर सफर करने वालों की जेबों पर भारी। PIA समेत दीगर एयरलाइंस के किरायों में चंद 100 नहीं हजारों रुपए का इजाफा। ईद प्यारों के साथ मनानी है तो मजबूर मुसाफिरों को जेब हल्की करना पड़ेगी। कौमी एयरलाइन समेत इजाजत के तहत मुल्की परवाजें ऑपरेट करने वाली निजी एयरलाइन की जानिब से किरायों में फी टिकट 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर के लिए 2 तरफा टिकट 50 से 55,000 रुपए में फरोख्त होंगी। समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए अंदरूनी मुल्क परवाजों पर 40% मुसाफिरों का लोड कम किया गया है और एयरक्राफ्ट की गुंजाइश से आधे मुसाफिरों को परवाजों में बिठाया जा रहा है। मुसाफिरों की कम गुंजाइश की वजह से सफर करने वाले नए मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना करना पड़ेगा। 5 मखसूस एयरपोर्ट्स पर अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को हफ्ते में 4 रोज सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि कराची ता इस्लामाबाद या लाहौर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,826 रुपए से शुरू होता है। कराची ता पेशावर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,108 रुपए से शुरू होता है। कराची ता कोयटा और कोयटा ता लाहौर या इस्लामाबाद एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 14,448 रुपए से शुरू हो रहा है। खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के चिड़ियाघर में 2 साल कबल लाया जाने वाला ज़राफा हलाक हो गया। मजीद जानेंगे अदनान शाह से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। अदनान से कुछ ही देर में राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के चिड़ियाघर में 2 साल कबल लाया जाने वाला ज़राफा हलाक हो गया। ज़राफा अफ्रीका से 2 साल पहले पेशावर चिड़ियाघर लाया गया था। ज़राफे की उम्र 3 साल बताई जा रही है। मजीद जानेंगे अदनान शाही से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक नया किस्म का जो साउथ अफ्रीका से 3 साल कबल जो था वो लाया गया था, वो सुबह जो है उसकी हलाकत वाक़ हुई है। चिड़ियाघर के जराये के मुताबिक और जो डायरेक्टर चिड़ियाघर है उनके मुताबिक उनका कहना था कि जो ज़राफा था उसको 2 साल पहले साउथ अफ्रीका से यहाँ पर लाया गया था। इसकी उम्र 3 साल थी। ज़राफा जो था वो डायरिया के मर्ज में मुब्तला था, उसको तिबी इमदाद फराहम की जा रही थी। ताहम वो जो है इलाज मुआवजे के लिए उसको लेके गए थे, मगर वो सेहतियात न हो सका और अपनी जान से जो है वो बाजी आ गया। इसी तरह ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जो दीगर जो जानवर थे वो चिड़ियाघर में मर चुके हैं। दीगर जानवर भी चिड़ियाघर में मर चुके हैं। अदनान शाहिद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरगोदा में आटा बहरान सर उठाने लगा, जबकि दुकानों पर आटा न मिलने की वजह से लोग आटा महंगा खरीदने पर मजबूर हो गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आबिद, उनसे जानते हैं। मलिक आबिद, बताइएगा, सरगोदा में भी आटा बहरान है?
जी बिल्कुल, अगर आटे की बात की जाए तो आटा बुरहान जो है दोबारा सर उठाने लगा है। ख़ास तौर पर सरगोदा में इसका जो है बुरहान पैदा होना शुरू हो गया। उसकी वजह ये है कि फ्लोर मिल मालिकान ने अपनी जो मिल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त एक दुकानदार के पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आटा छाट होने की वजह क्या है। आप बताएंगे जी कि आटा ना मिलना या आटा छाट होना की क्या वजह बन रही है? सबसे पहले तो ये हुकूमत की नाकस पॉलिसी है जिसकी वजह से फ्लोर मिल बंद हुई हैं। गंदम पहले स्टॉक करने देते थे, अब स्टॉक नहीं हो रही गंदम, जिसकी वजह से ये बुरहान दोबारा आटे का हो रहा है। यही वजह है, अगर जब गंदम फ्लोर मिल को नहीं मिलेगी तो आटा उन्होंने कहाँ से देना हमें। ये खाली पड़ी है दुकान, 5 दिन हो गए हैं, आटा ही नहीं है मार्केट में और आवाम सड़कों पर है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ख़ास तौर पर क्योंकि मिल्स मालिकान का कहना है कि उनको जो हुकूमत की तरफ से कोटा दिया जाता है और उनको स्टोर करने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया जाता था कि आप गंदम जो है वो 72 घंटे के लिए अपने पास स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी जो है उसमें स्टोर करने की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरी तरफ इंतज़ामिया की तरफ से कोई इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी जा रही कि वो लोकल सतह पर जो सरगोदा की इंतज़ामिया है वो देखे कि मिल्स मालिकान आटा मार्केट में क्यों नहीं पहुँचा रहे, उनके साथ मुज़ाकरात करके आटा मार्केट में लाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटा महंगा होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत माफिया का तायुन करने में नाकाम है और आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। माह मुकद्दस में भी महंगाई का तूफान न थम सका। महंगाई का बेकाबू जिन हुकूमती बोतल में आने को तैयार ही नहीं। महंगाई को कम करने के तमाम हुकूमती मंत्र लॉलीपॉप साबित हुए। फल, सब्जियां, दालें, बल्कि इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जूस खजूर महंगी रही। आटा महंगा होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ताहाल माफिया का तयन ही नहीं कर सकी। नजायज मुनाफाखोरों को माह मुकद्दस में भी ना कोई शर्म है ना हया। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत पूछ रही है माफिया कौन है। फैसलाबाद के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आटा महंगा हो गया जे, मिल मालकन ने रेट बढ़ा दिते ने आटे दे। गरीब आदमी पहले ही पिछया होया है। लॉकडाउन की वजह तो इन्नी के बदतर सूरत हाल हुई है कि लोग ना फाके कट्टन दे ने, लोगों के कोल पैसे खर्चन वास्ते जरूरियात जिंदगी वास्ते पैसे नहीं है। मिल मालक ना आटा महंगा करता, किधर जाए गरीब तबका। पहले हालात इदा देखो, लॉकडाउन स्टार्ट है, की करना, हुकूमत सुती पई है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनको और रिलीफ देते, ये तो बल्कि उनका खून चूस रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। महंगाई अग्या, गरीब आदमी भुखा मरन दिया, गरीब किथे जावे। आटा महंगा, चीनी महंगी, घे महंगा। साडे रोजे गए ने, रोज़े तो बाद भी साडे फाके ने, आटा असीं नहीं खरीद सकते, किन्ने खरीदना। वो कहते हैं कि मिल जाए तो रोजी, ना मिले तो रोजा। वही हाल कर दिया हुआ है कि गरीब आदमी का अगर रोजी मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आदमी का रोजा ही होगा। आटा इतना महंगा कर रहे हैं, इतना महंगा कर रहे हैं कि आम आदमी तक तो रोजा कम से कम ये 20 रुपए किलो तक तो आटा पहुंचाना चाहिए था। फैसलाबाद के शहरियों का ये कहना है कि माह मुकद्दस हुकूमत की जानब से ये दावे सुनते ही गुजर रहा है कि महंगाई को कम किया जा रहा है, लेकिन ताहाल मुंह जोर महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। शहरियों का भरपूर मुतालबा है कि हुकूमत माफिया का तयन करे और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि अवाम सस्ती चीजों से इस्तेफादा कर सकें। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। हमारे साथ मौजूद थे अली गौहर जो फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें, ऑल फ्लोर मिल्स फेडरेशन के चेयरमैन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सरगोदा में फ्लोर मिल को गुज़श्ता कई रोज से बंद हैं। गुजरात में महकमा खुराक का गंदम खरीदारी हक हदफ की तकमील में नाकामी के बाद फ्लोर मिल के खिलाफ नाम नहाद क्रैक डाउन किया गया। फ्लोर मिल पर पसाई के लिए मौजूद 200 बोरी भी कब्जे में लेकर फ्लोर मिल पर FIR दे दी गई। गुज़श्ता रोज डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में भी इसी तरह का एक्शन किया गया। फ्लोर मिल की दीवारें फलांग कर फ्लोर मिल पर पसाई के लिए बड़ा स्टॉक कब्जे में लिया गया। क्या गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने के लिए ज़िली इंतजामिया को फ्लोर मिल आसान हदफ नजर आती है, या फिर हमें कोई दूसरा खाम माल बता दिया जाए कि जिससे हम आटा बना लें। फ्लोर मिल इंडस्ट्री की कारोबार के साथ साथ इज्जत नफ्स भी मजरू हो रही है। इन हालात में फ्लोर मिल के लिए अपना कारोबार जारी रखना नामुमकिन है। इसलिए हमने फैसला किया कि कल से बरोज सोमवार सुबह भर में फ्लोर मिल अपना कारोबार बंद कर देगी और सुबह की तमाम फ्लोर मिलें गैर महीना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी।
ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے, ہمارے مقصد سے مطالبے ہیں. ایک یہ کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی مداخلت بند کی جائے. دوسرا جو فلور مل پہ FIR کاٹی جا رہی ہیں اس کو روکا جائے. اور جو گندم کی خریداری ہے ہمیں فریلی آزادانہ اجازت ہونی چاہیے. اور جو آٹا کی سپلائی ہے بین الصوبائی اور بین الضلعی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے آئین پاکستان کے آئین مطابق. حکومت پنجاب نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایک ایکٹ نافذ کیا ہے جس کے مطابق ایک لائسنس ہولڈر ایک مقررہ حد تک جنس رکھ سکتا ہے. فلور ملز اپنا کاروبار ڈیلر کے ذریعے کرتی ہے اور ڈیلر ایک وقت میں ایک سے زائد فلور ملز کی مصنوعات رکھتا ہے. مقررہ مقدار کا حصول آٹے کے ڈیلر پر لاگو نہیں ہوتا. اس لیے حکومت آٹا ڈیلر کے حوالے سے ذخیرہ اندوزی ایکٹ پر نظر ثانی کرے. محکمہ خوراک مارکیٹ میں گندم کے نرخوں کے مطابق تھیلا آٹے کے نئے نرخوں کا اعلان کرے, کیونکہ گندم کا ریٹ بڑھ گیا ہے. تقریباً اب لاہور میں 1500 کے قریب گندم کا ریٹ ہے. ریٹ کے بڑھنے کی میں وجہ آپ کو بتا دوں. جو ہمارے سپلائر ہیں کیونکہ ان کا رسک بڑھ گیا ہے, یہ زبردستی ان کی گاڑیاں سینٹر پہ لے جاتے ہیں, ان کو انلوڈ کرتے ہیں, اس لیے وہ ایک مارجن رکھے. اگر ان کو 1400 میں لوڈ ریٹ ملتی تو ہمیں 1500 میں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 50% پہنچے گی, 50% سینٹر پہ چلی جائے گی. یہ گندم کی مہنگی ہونے کی مین وجہ ہے. پنجاب کی طرح دوسرے صوبوں کی انڈسٹری بھی مسائل کا شکار ہے. صوبہ بلوچستان میں گندم کے سب سے بڑے پیداواری ڈسٹرکٹ نصیر آباد سے گندم فلور ملز کو خریدنے نہیں دی جا رہی. اسی طرح خیبر پختونخوا کی فلور مل انڈسٹری بھی پنجاب کی جانب سے گندم کی عدم فراہمی کے بعد مسائل کا شکار ہے. حکومت اس جانب بھی توجہ دے. آخر میں ایک بار پھر آپ حضرات سے آمد کا شکریہ ادا کر آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا ایز آف ڈوئنگ بزنس کاسٹ آف ڈوئنگ. ایز آف ڈوئنگ ان کی یہ ہے کہ جس انڈسٹری کا را مٹیریل گندم ہے جو بھی وہ اس کا ذخیرہ اندوز ہے اور جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ بیچتا ہے وہ اسمگلر ہے اور خود جو 3 نسلوں سے وہ کام کر رہے ہیں وہ مافیا ہیں. تھینک یو. میں اب آسم بھائی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو تھوڑا بہت شکریہ آپ دوستوں کا. گزارش یہ ہے کہ جی ہماری طرف سے گورنمنٹ کے ہدف پورا کرنے کے لیے پورا تعاون رہا. جس طرح رؤف صاحب نے بتایا کہ 48 گھنٹے 12 24 12 6 ملتان میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث منافع خور بے لگام ہو چکے ہیں. مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. بتا رہے ہیں احمد کاشف. جی احمد بتائیے گا, وہاں پہ منافع خور بے لگام ہو چکے؟ جی بالکل, ماہ رمضان میں بھی عوام کی جگہوں پر منافع خوروں کی جانب سے ڈاکہ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ایک عام آدمی شدید پریشان دکھائی دیتا ہے. آخری اشرہ گزر رہا ہے لیکن اس وقت جو اشیاء ضروریہ اور خصوصی طور پر جو پھل فروٹس کی قیمتیں ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ عام آدمی اس کو خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک عام آدمی کے لیے کس قدر مشکلات ہیں انہیں سے عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر بتائیے گا مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ مہنگائی کے حوالے سے عام زندگی بڑی متاثر ہو رہی ہے اور کرونا کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ اپنی اقدامات جاری کیے ہوئے ہیں. میں حکومت پاکستان سے اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ دالیں, سبزیاں اور فروٹ جو ہے وہ عام انسان کی جو ہے نا پرسائی اس سے ممکن نہیں ہے. میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را مہربانی کر اسے پرائس کنٹرول کریں اور ضلعی انتظامیہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس پر کنٹرول, ورنہ عام آدمی بہت پریشان ہے. بہت پیسہ کاروبار نہیں ہے, ٹرانسپورٹ بند ہے, دکانیں بند ہیں اور عام آدمی جو ہے نا بے روزگار ہوا ہے. تو خدا را مہربانی کریں, کم از کم اس کو ساتھ اٹیچ کریں اور بے روزگاری کو فوری اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں شہری کے پرائس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ضرورت ہے یہاں پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اپنی کارکردگی کو ظاہر کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات. شکریہ احمد کاشف. لاہور میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمت کم نہ ہوئی. سرکاری ریٹ کے برعکس منافع خور پھلوں اور سبزیوں کو منمانے ریٹ پر فروخت کر رہے ہیں. بازاروں میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی دکھائی نہیں دے رہے. شہریوں نے سبزیاں سستی ہونے کو خواب قرار دے دیا ہے. رپورٹ کریں گے اجلال حیدر. عام بازاروں میں سبزیوں کی ریٹ لسٹ کے بجائے اضافی قیمتوں پر فروخت جاری. لیموں کا ریٹ 250 روپے کلو ہے لیکن عام بازار میں 300 روپے سے 350 روپے فی کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے. بھنڈی کا ریٹ سرکاری طور پر 60 روپے ہے لیکن 100 روپے کلو پر فروخت کی جا رہی ہے. ادرک 200 کے بجائے 250 سے 300 روپے اور لہسن 140 کے بجائے 200 سے 250 روپے کلو پر فروخت کیے جا رہے ہیں.
शहरी कहते हैं कि हुकूमत इक़दामात तो बहुत कर रही है, लेकिन अशियाए खुरोनोश की कीमतों को कम करने पर कोई खास काम नहीं किया जा रहा। जो रेस्ट लगी हुई है उसके खिलाफ चल रही है अवाम, जो दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, उसके वो खिलाफ चल रहे हैं, उस पे ना अमल दरामद हुकूमत करवा रही है और ना वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कम से कम एक दफ़ा कोई हुकूमती आए यहाँ पे चेक करने के बाद देखें यहाँ पे कि लोगों का पहले ही गुजारा मुश्किल हुआ हुआ है, तो ये बाजार का शो बिल्ड करके ये सस्ता बाजार है, यहाँ गुजारा बहुत मुश्किल है। सब्जी फरोशों का कहना है कि ना मंडी से रेट लिस्ट मिलती है और ना ही वो सार्फिन को रेट लिस्ट के मुताबिक दे सकते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर गिरां फरोशी को कंट्रोल करे तो मसनूई महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जामिल के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुंह जोर महंगाई ने गरीब शहरियों का जीना दोभर कर दिया है और हुकूमत माफिया खेलने की बजाय महंगाई माफिया को नकील डाले, ऐसा मुतालबा किया जा रहा है। पेट्रोल की प्राइस कम होने के बावजूद भी महंगाई जो है ना वो ज्यादा हो गई है। हुकूमत हर तरफ की रेट तो नजर आती है, लेकिन ये महंगाई की तरफ कोई रेट नहीं है उनकी, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जितना मर्जी अपना रेट लगा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ। दुकानदार को वो कह देता है क्योंकि सानू पिछे महंगी लबन रही है, असी को की तो धुंध ही है। महंगाई बहुत ज्यादा, सब्जियां, फ्रूट, हर शय बहुत ज्यादा महंगी है। ऊपर से लॉकडाउन भी है जिसकी वजह से लोगों के कारोबार बिल्कुल मफलूज है, और ऊपर से बिजली के बिल, गैस के बिल, बाकी मुश्किलात घरेलू की आगे पीछे सब कारोबार के बहुत प्रॉब्लम है। इधर एक तरफ से तो जो डीजल है, पेट्रोल है, वो सस्ता हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये हाल है कि किराए वहीं के वहीं पर हैं और चीज़ों की कीमतें जो है ना आसमान को छू रही हैं। पिछले दिनों में चेक किया गया था कि महंगाई कम से कम 8% जो है ना वो बढ़ी है। ये जो आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, अब 20 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। ये जो फ्लोर मिल के मालिकान है ये कीमत बढ़ा देते हैं, जो गरीब आदमी है, जो निचले तबके हमारे जैसा आदमी है, वो कहाँ जाएगा। आटे की कीमत अब 20 रुपये बढ़ गई है। अब हमारे जैसे जो मजदूर हैं वो कहाँ जाएं और कहाँ से खाएं, ये तो हाल है इन हुक्मरान का और इन हुकूमत का। इस लॉकडाउन से गरीब को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिमों को फायदा हुआ है। पुलिस वालों की चांदी हो गई, चांदी क्या बल्कि सोना हो गया उनका। फिर दुकानों से कोई पैसे ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई समझ के अंदर नहीं आ रहा। हमारे जैसा सफेद पोश आदमी है ना, वो मारा गया। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते महंगाई बहुत ऊपर चढ़ गई है। फलों में जाते हैं तो फलों में भी बहुत रेट ऊपर हमें मिले हैं। सब्जी में जा रहे हैं, देख रहे हैं तो स्पेशली नींबू बहुत महंगा है और बाकायदा और सब्जियां वो बहुत महंगी हैं। और आप देखते जाएं तो बाजार में काफ़ी ऐसे आइटम है जो हम लेने जा रहे हैं, सारी महंगे हैं। भाई महंगाई तो बहुत है, क्या कर सकता गरीब आवाम। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, बैठा हुआ है फारिग, पैसे है नहीं, और फिर चीनी लेने आ रहा है, चीनी महंगी, आटा महंगा, फिर वो बोलता है नहीं आज, अभी ले आना, कल ले आना, थोड़ी देर बाद ले आना। एक तो इन लोगों के चक्कर होगा लगे रहो, फिर 5 बजे लॉकडाउन बंद हो जाती है दुकानें। हर आदमी परेशान है, हर तरीके से परेशान है। हर चीज लेने आ रहा है, डंडे मार रही है पुलिस, पकड़ रही है, फेंक रही है, मार रही है। कोई चीज ले नहीं सकते सुकून से हम। और अगर एक चीज 1 रुपए की है वो 10 रुपए की बिक रही है। इतना ज्यादा परेशान है अवाम। इमरान भाई से बोलो थोड़ा ख्याल करो और जैसा भी होता है काम खोल दे। भाई गवर्नमेंट समझ सकती है, हम कोई माफिया को करीब से देख तो रही नहीं है, हम क्या जाने, हम तो मजदूर लोग हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, माफिया को पकड़े, हमारा क्या काम है भाई। टिड्डी दल ने मुल्तान के इलाकों का भी रुख कर लिया। टिड्डी दल के हमले से आम के बागात, कपास और तरबूज समेत कई फसलें मुतासर हो रही हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। अहमद बताएगा, टिड्डी दल ने मुल्तान के इलाकों का भी रुख कर लिया है। उसमें खास तौर पर शाही, चावन, जोक, वैंस और मानकोट, यहाँ पर टिड्डी दल ने इस पर हमला किया है। और इसमें खास तौर पर जो आम के बागात हैं, कपास और तरबूज समेत जो दीगर फसलें हैं वो इससे खासी मुतासिर हैं। किसान बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इनकी वजह से काफी मरतबा पहले भी नुकसान जो है वो उनकी फसलों का हो चुका है। और इस वक्त खास तौर पर जो ऊपर इलाके मैंने अभी बयान किए हैं उसके साथ साथ मत्ती तल और हंजनवाही के जो इलाके हैं वहां पर भी टिड्डी दल ने जो है उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से कोई खास सिर्फा हिकमत अमली ताहाल जो है वो सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो किसान हैं जिनकी अपनी फसलें इस हवाले से मुतासिर हो रही हैं वो रिवायती तरीकों से टिड्डी दल को भगाने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। चीन के इसराइल में सफीर डॉक्टर डोविड तल अबीब में वाक़ रहायशगाह में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए। उनकी मौत की वजूहात का इल्म अभी तक नहीं हो सका।
चीनी सफीर की अहलिया और बेटा भी उनके साथ ही रिहाइश पजीर थे। वो उस वक्त कहाँ हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। इस्राएली हुकाम के मुताबिक इम्कान है कि चीनी सफीर के अहल खाना मुल्क में मौजूद नहीं हैं। सीनियर सफीर को फरवरी में इसराइल में सफारती फराइज सौंपे गए थे। चीनी सफीर की मौत ऐसे वक्त मंजर आम पर आई है जब कोरोना को लेकर अमरीका और चीन के दरमियान तलखी मौजूद है और अमरीकी हुकाम की जानिब से इल्जामात का सिलसिला भी बाबूल बना हुआ है। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तानी डॉक्टर की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को 8 मुअस्सर तरीन अद्वियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वैक्सीन के इंसानी सेहत पर असरात के तफसीली मुशाहिदे के लिए जल्द टेस्टिंग का आगाज कर दिया जाएगा। मुनीर बरतानिया की लिंकास्टर यूनिवर्सिटी के शोबा वायरोलॉजी से मुंसलिक है। डॉक्टर मुनीर वायरसेस की मुख्तलिफ इकसाम और इनके तरियाक के माहिर समझे जाते हैं। कोरोना के फैलने के बाद से उन्हें मुख्तलिफ आलमी नशियाती इदारों पर लोगों को वबा से बचने के लिए हिफाजती इकदाम अपनाने की तरगीब देते दिखाया गया है। डॉक्टर मुनीर तवील अरसे से इन्फ्लुएंजा और कोरोना समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ तहकीक कर रहे हैं कि वायरस के तदारुक के लिए 200 के करीब वैक्सीन बनाई गयी, जिनमें से सिर्फ 8 को टेस्टिंग के लिए मुंतखब किया गया। उनकी तैयार करदा वैक्सीन भी इन्हीं में शामिल है। डॉक्टर मुनीर ने कहा कि वैक्सीन को जल्द तिब्बी मुशाहिदे के लिए भिजवाया जाएगा। डॉक्टर मुनीर ने वबाई अमराज के जानवरों से इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होने की वजूहात और इंसानी जिस्म में वायरस की नशोनुमा पर भी मुख्तलिफ मकाले तहरीर किए हैं। वो मुस्तकबिल में कोरोना के जानवर इंसान में मुंतकिल होने पर तहकीक का इरादा रखते हैं, जिससे उम्मीद है कि वबा के बुनियादी ढांचे को समझने में इंतहाई मदद मिलेगी। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तानी डॉक्टर की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को वायरस से बचाव के मुअस्सर तरीन अद्वियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। डॉक्टर मुनीर कहते हैं वायरस के तदारुक के लिए 100 से ज्यादा वैक्सीन बनाई गयी, जिनमें से सिर्फ 8 को टेस्टिंग के लिए मुंतखब किया गया। वैक्सीन को जल्द तिब्बी मुशाहिदे के लिए भिजवाया जाएगा। And as many of you as audience already know that there are more than 100 vaccines. Those are in preclinical trial, and 8 of them they are already reaching to the clinical trial where they are in the human blood for the first time. So progress has certainly been made very rapidly, but still we don't have any vaccine that we can count on being available this year, because these vaccines need to be certainly tested rigorously and should be ensured that they are safe enough, and that would take time, and we cannot press and compress this timeline till uninfected, so they don't have any existing immunity. So any relaxation in the lockdown would allow these people to come back to normal life, and where they would be interacting with people who are having infection, especially with the ones who are having no clinical sign. The transmission would come out to the same scale as it has been before. And if we would see premature relaxation that is happening in many countries, including UK, the chances for this virus to come back would be very high. And also the important thing to emphasize onto the fact is that if the disease is circulating in any country in the world, the threat would be the same on any other country who have already claiming to be protected or having enough control on. So therefore the need of the time is to have a consistent approach globally so that the disease will remain at the bay around the world. The disease has come from, so that we can make strategies and policies such that it wouldn't come back again, and to really investigate. For example, if we can identify which intermediate animal has been that could let the virus to jump from bats to human, we can certainly devise the policies ensuring that this wouldn't happen again. And identifying the origin of the virus is really a challenging process, especially when the disease spread so quickly, and the wet market that was shut in early days, there was no opportunity to collect the sample. So my anticipation is that the origin of the virus would always remain mystery, but certainly identifying this one would certainly help in the near future to identify the future pandemics. भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर उम्मत मुस्लिमा तशवीश में मुब्तला है। कोरोना की आड़ में इंतहा पसंद मुसलमानों को सरेआम बहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद भारत में जहाद का ऐलान किया, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। मोदी सरकार की आशरबाद से मुसलमानों पर ढाई जाने वाले मजालिम के खिलाफ अफगान तालिबान ने तशवीश का इज़हार किया है। अफगान तालिबान ने एक पैगाम में ईद उल फित्र के बाद बाकायदा हिंदुस्तान में जहाद का ऐलान किया है। धमकी दी है कि अस्करी हमलों के साथ फिदाई हमले भी किए जाएंगे। ये भी बताया गया कि जहाद का फैसला भारत में RSS, बीजेपी और ऐसे ही दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लीतों पर
बेतहाशा मजालम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खिते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। खिज़ां रसीदा वादी कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया है और नौजवानों को जिला डोडा में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। वादी जन्नत नजीर आज भी लहू रंग, जमीन का चप्पा चप्पा खुद पर गुजरे अनगिनत मजालिम की दास्तान सुना रहा है। एक तरफ आबाई हमलों ने कश्मीरियों की जान अज़ाब में डाल रखी है तो दूसरी तरफ भारतीय दरिंदा सिफ्त फौज है कि हर रोज मजलूमों के खून से होली खेलने में मसरूफ है। शैतान सिफ्त एहलकार सूरज गुरूब होते ही वारदातों की अंजामदही को निकल खड़े होते हैं। अगवा, कत्ल, लूटमार इसमें दरी भारतीय फौज की शनाख्त बन चुकी है। मुल्क वबा की तदारुक की आड़ में काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों पर पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी हैं। मकामी डॉक्टर्स पर तिब्बी सरगर्मी अंजाम देने पर पाबंदी, सर खरीद डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। कश्मीरी खौफ ज़दा हैं कि कहीं इलाज के बहाने उन्हें मजीद जानी खतरात से दो चार न कर दिया जाए। मकबूजा वादी में अगस्त 2019 से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। अशाए खुर्दनोश की तरसील पर पाबंदी आयद है। बीमारों को दानिस्ता मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी मुअत्तल है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। रोशनियों का शहर कराची बुनियादी मसाइल का गढ़ बन गया। कहीं कचरे के ढेर जमा हैं तो किसी इलाके में पानी और कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही हैं, जिसका अंदाजा कोरंगी के इलाके अली अकबर शाह से लगाया जा सकता है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। रोड, टूटी हुई सड़कें किसी देहात या पसमानदा इलाके की नहीं, बल्कि ये मनाजिर हैं कराची के इलाके कोरंगी के, जहां पर लोग तो बसते हैं लेकिन वो जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। मसाइलों में घिरे इलाका मकीन जहनी अजियत का शिकार हो गए हैं। तकलीफ बहुत होता है भाई, हर गली में देखो, हर रोड में खतरा है सारा। हम लोग बहुत नमाज में जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। मसाइल तो बहुत है, तकलीफ है, इसमें परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, सारा कुछ है इसमें। आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि कराएं तो, लेकिन हमारा सुनता कौन है। बच्चे घर से बाहर निकलते तो बीमार हो जाते, सिर्फ यही कचरे का वजह से सारे बीमारी कचरे का वजह से ही फैली। ऐसा लगता है कि कराची का हिस्सा भी नहीं है कि यहाँ पे पानी आ गई, कराची यही है नहीं, ये किसी और मुल्क का हिस्सा है। इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ पर पानी की लाइन तो मौजूद है, लेकिन इसमें पानी के बजाय सिर्फ हवा ही आती है। पानी भी नहीं आता, ना गटर की लेन है हमारी, भर के रोड पे निकलता है। इलाका मकीन कहते हैं कि वैसे तो हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रहते हैं, लेकिन लगता कुछ यूं है जैसे कि किसी गांव देहात में जिंदगी गुजार रहे हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि उनके इलाके के बुनियादी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलातें कम हो सकें। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। एंकर मुरीद अब्बास को पिछले 10 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन मुरीद अब्बास के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। अता हुसैन की रिपोर्ट। मुरीद की जो ज़ारा थी वो तो मुरीद के साथ चली गई। अब जो जीना है मुझे, मेरी औलाद के लिए ज़ाहिर है मुझे जीना है, उसको किसी काबिल बनाना है। अफसुर्दा बैठी तस्वीर को तकती हुई ये बाहिम्मत नौजवान लड़की ज़हरा अब्बास, जो 10 माह पहले तक तो सुहागन थी, लेकिन बदकिस्मती ने ज़हरा अब्बास के ऐसी दस्तक दी, इसके नौजवान खूबसूरत शौहर मुरीद अब्बास को अपने साथ ले गई और ज़हरा अब्बास को हमेशा हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गई। रमज़ान की जब आ रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन हो रहा था, एंजाइटी बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुरीद नहीं है, उसके बगैर अकेले मैं कैसे अफ्तार करूँगी, मैं अकेले कैसे सहरी करूँगी। तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। पहले पेरेंट्स साथ में होते थे, शादी हो गई फिर तो मेरे मुरीद होता था। आज से 10 माह कबल पैसों की वजह से आतिफ जमान नामी शख्स ने मुरीद अब्बास को गोलियों से छलनी कर दिया था। मुरीद अब्बास को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन दौरान इलाज वो जहान फानी से कूच कर गए थे। मुरीद और ज़हरा का बेटा अभी बहुत छोटा है, जो यतीमी का मतलब भी नहीं जानता होगा, लेकिन कम उम्र में ये बच्चा यतीम हो गया है। जब ये वाकया हुआ, जब मुरीद गया, तो उस वक्त ज़ायन 2.25 साल का था, लेकिन आज वो 2.5 साल का हो गया है माशाल्लाह, लेकिन उसको आज भी अपना बाप
بالکل ویسے ہی یاد ہے. زہرا عباس کہتی ہیں مجھے انصاف کی امید ہے اور اللہ پر پورا بھروسہ ہے. میں اپنی پوری کوشش کروں گی کیونکہ میں اللہ کے بھروسے یہ کیس میں لڑ رہی ہوں کیونکہ میرا ایمان اللہ پر ہے, اللہ ساتھ ہے, میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں. مرید عباس نے عاطف زمان کے ساتھ مل کر ٹائرز کا کاروبار کیا تھا. اپنے منافع مانگنے پر عاطف زمان نے مرید عباس کو بےایمانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا. عاطف زمان نے خود کو بھی اپنی ہی گولی سے زخمی کر کے کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. تاہم مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے. مرید عباس کی بیوہ کہتی ہیں کہ نظام تھوڑا کمزور ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے. زندگی ہم سفر کے بغیر گزارنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. مرید عباس کے شہید ہو جانے کے بعد زہرا عباس بھی بغیر ہم سفر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور ساتھ ہی عدالت سے انصاف کی منتظر بھی ہیں. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عطا حسین, سچ ٹی وی, کراچی. دادو میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ وصولی پر ایف آئی اے نے کارروائی کا آغاز کر دیا. ایف آئی اے ڈائریکٹر حیدرآباد نے فائدہ حاصل کرنے والے افسران اور اساتذہ کو سرکاری خزانے میں رقم واپس جمع کرانے کا حکم جاری کر دیا. ایف آئی اے ان ایکشن دادو میں مستحق افراد کا حق کھانے والے بے ضمیر عناصر کے خلاف انتظامیہ نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ وصولی پر ایف آئی اے متحرک ہو گئی. گریڈ 17 سے 19 گریڈ کے محکمہ تعلیم کے اساتذہ اور افسران کی بیویوں نے وظیفہ وصول کیا تھا. ایف آئی اے ڈائریکٹر حیدرآباد نے فائدہ حاصل کرنے والے افسران اور اساتذہ کو سرکاری خزانے میں رقم واپس جمع کرانے کا حکم جاری کیا اور اساتذہ اور افسران کو ڈائریکٹر ایف آئی اے حیدرآباد کے دفتر میں 18 مئی کو طلب کر لیا گیا. پیسے وصول کرنے والوں میں ایچ ایس ٹی, جی ایس ٹی سمیت متعلقہ ایجوکیشن افسران شامل ہیں. اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کے باوجود دکانیں کھلی ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے. بچے بھی کپڑے اور جوتے خریدنے کے لیے والدین کے ہمراہ مارکیٹ پہنچے ہیں. بتا رہے ہیں اسلم کھوکھر. جیسے کہ عید قریب آتی جا رہی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی خریداری میں مشغول ہیں. لاک ڈاؤن ہے, کرونا وائرس کی صورتحال ہے, لیکن حکومت نے جیسی نرمی کی تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ خریداری کے لیے نکلے. تو وہیں پر بچے بھی جو ہے وہ خریداری کے لیے نکلے ہیں. کسی نے شوز لینے ہیں, کسی نے اپنے لیے فراک لینی ہے, کسی نے مہندی لینی ہے, کسی نے چوڑیاں لینی ہیں. تو اس وقت میں اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں موجود ہوں. میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے والدین کی جو جیبیں ہیں وہ خالی کرانے میں لگے ہوئے ہیں اور کیا جو ہے وہ خرید کر رہے ہیں. بچے یہ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں اور کیا آپ نے لینا ہے؟ اپنی مما اور پاپا کے ساتھ آئی ہوں میں, اور میری مما کے لیے پاپا نے کپڑے لینے, میں نے شوز لینے, چوڑیاں لینے اور مہندی لینی ہے. جی بالکل, جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ شوز بھی لینے ہیں, انہوں نے کپڑے بھی لینے ہیں. تو مطلب اس کا کہ والدین کی جیب جو اچھی خاصی آج ہلکی ہوگی. ہمارے ساتھ ایک چھوٹے بچہ اور بھی موجود ہے, مجھ سے بھی بات کر لیتے ہیں. چھوٹی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کیا لینے کے لیے آئی ہیں؟ میں کپڑے لینے آئی ہوں, جوتے لینے آئی ہوں. اچھا, جوتے لینے کے لیے. اور کیا لیا آپ نے؟ چوڑیاں لی ہیں آپ نے؟ نہیں. کب لینی ہے چوڑیاں؟ ہم چوڑیاں لینے آئے. چوڑیاں لینے آئے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ موجود ہے. کیا لینے آئے ہو؟ جوتے. جوتے لینے کے لیے آئے. اور کیا لینا ہے؟ اور کپڑے. اور کپڑے لینے ہیں. جی بالکل, انہوں نے بھی جوتے اور کپڑے لینے ہیں. اور جو بچیاں ہیں بالکل ان کی جو پسند ہوتی ہے کہ وہ چوڑیاں ان کو پسند ہوتی ہیں, مہندی جو ہے ان کو پسند ہوتی ہے, عید پہ وہ مہندی لگاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی چھوٹی موٹی جولری ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے پسند کرنی ہے. تو بچوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ موجود ہے اور اپنی شاپنگ میں مصروف ہیں. اور یقیناً والدین ان کو لے کے آئے ہیں. اور کیونکہ کرونا کی صورتحال ہے, لاک ڈاؤن ہے, لیکن اس کے باوجود تمام والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ شاپنگ کرائیں. تو اس لیے آج بازاروں کی طرف انہوں نے رخ کیا اور بچے جو اپنی خریداری میں مشغول ہمیں نظر آتے ہیں. جی بہت شکریہ اسلم کھوکر. وزیر اعظم مراد علی شاہ نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں 787 نئے کورونا کے متاثرہ مریض سامنے آئے ہیں. مزید 9 مریض بھی زندگی کی بازی ہار گئے. صوبے میں 787 نئے کورونا کے متاثرہ مریض سامنے آ گئے. وزیر اعظم نے مزید کہا گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9 مزید مریض زندگی کی بازی ہار گئے. وزیر اعظم مرنے والوں کی مجموعی تعداد 277 بتائی جا رہی ہے. اس وقت 114 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 31 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں. اس وقت 11,891 مریض زیر علاج ہیں جبکہ 10,485 گھروں میں اور 838 مریض آئسولیشن سینٹرز میں موجود ہیں.
लॉक डाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई है। मजीद 39 अफराद भी चल बसे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अपडेट के मुताबिक नए और मोहलिक वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा से पाकिस्तान भर में 40,151 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 27,937 है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,352 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अब तक 11,341 मरीज वायरस से लाहक होने वाली बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 39 अमवात रिपोर्ट हुई। सबसे ज्यादा अमवात अब तक खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जिनकी तादाद 305 है। इसके बाद सिंध में 268 अमवात, पंजाब में 252 अमवात, बलोचिस्तान में 36, इस्लामाबाद में 7, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 15,590 हो गई। पंजाब में 14,584 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 5,847, बलोचिस्तान में 2,544, इस्लामाबाद में 947 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 527 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 112 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 14,175 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक कोरोना के 3,73,410 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में 4,883 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सिंध में 3,804 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 1,699 मरीज, बलोचिस्तान में 417 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 348 मरीज, इस्लामाबाद में 113, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 77 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बरतानवी कुकिंग स्टार नादिया हुसैन कोरोना के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रही हैं। कहती हैं लॉकडाउन के दौरान वालिदा और बहनें फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं। उम्मीद है उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कोरोना की आलमी वबा से नामवर स्टार्स को भी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। 2015 में बरतानिया में कुकिंग मुकाबला जीतने वाली नादिया हुसैन ने कोरोना के दौरान अपने खौफ के बारे में बताया। उनका कहना था कि मुल्क में लॉकडाउन ने उन्हें परेशान किए रखा, क्योंकि उनकी वालिदा और बहनें कोरोना की आलमी वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम कर रही थीं। उनकी वालिदा 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान अस्पताल की लॉन्ड्री में काम करती थीं। ख्वाहिश थी कि वो महफूज रहें। बहनें भी वबा के दौरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जिन्हें वायरस का शिकार मरीजों का सामना करना पड़ता है वो बदसलूकी करते हैं, लेकिन बहनों को उन्हें समाजी दूरी का दर्स देना पड़ता है। नादिया के मुताबिक वो कोरोना की वबा के बारे में सोचकर परेशानी का शिकार होती तो घर में मौजूद लान का रुख करती। सूरज की किरणों को देखती तो यूं महसूस होता था जैसे कोई मदद मिल रही हो। नादिया ने उम्मीद जाहिर की कि वबा का खात्मा होगा, उन लोगों को फरामोश नहीं किया जाएगा जिन्होंने कठिन हालात में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए खिदमत सर अंजाम दी। सरगोदा की तहसील भलवाल अल-फजल टाउन की रिहायशी गुर्दे के मर्ज में मुब्तला खातून इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। मुखैर हजरात से मदद की अपील कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक आबिद। सरगोदा भलवाल के इलाका अल-फजल टाउन में 4 बच्चों की मां गुर्दे फेल होने की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में है। गुर्बत और मुफलिसी की वजह से इनको अपना इलाज करवाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि खामन पाक फौज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए कश्मीर बॉर्डर पर शहीद हो गया था। खातून का कहना है कि अगर कोई मसीहा गुर्दा चेंज करवा दे तो वो अपने बच्चों के लिए खुशहाली की जिंदगी गुजार सकती है। मेरे जी खामन शहीद हो गया, मेरे 2 गुर्दे डैमेज हो गए। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे ना जिंदगी गुजार सकूं। मेरी अपील है लोगों का कि मैं अपने गुर्दा कोई पवा सकूं। जबकि बच्चों का कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम अपनी मां का इलाज करवा सकें। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनके दोनों गुर्दे डैमेज हो चुके हैं और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपनी अम्मी का इलाज करवा सकें। और इसलिए आपके साथ रिक्वेस्ट है कि हमारी अम्मी के लिए कोई इमदाद कर दें ताकि हम अपनी अम्मी का इलाज करवा सकें और अम्मी की ज़िंदगी बचा सकें, क्योंकि हमारे अब्बू तो पहले ही शहीद हो चुके हैं, वो आर्मी में थे। इसलिए अब अम्मी है हमारा सहारा। इसलिए आपके पास अपील है कि हमें हमारी अम्मी की उनसे है ना अम्मी की तबीयत अल्लाह करे ठीक हो जाए, और इसलिए आप ही इमदाद कर सकते हैं ताकि गुर्दे डायलिसिस करवाने के लिए सरगोदा जाना पड़ता है। वसाइल ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो कि बेवा है और इनका शौहर जो है वो कश्मीर में शहीद हो गया था, तो अब उसके 4 बच्चे हैं और एक वो खुद है। उसके दोनों गुर्दे जो है वो डैमेज हो चुके हैं। इसलिए वो एक किसी मसीहा की इंतज़ार में है कि कोई ऐसा इंसान हो
जो हमदर्दी रखने वाला हो, जिसके दिल में दर्द हो और वो मेरे दिल को, मेरे गुर्दों के दर्द को समझे और मेरा जो है वो इलाज करवाए, ताकि मैं भी अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकूं। पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने वाले शहीद की बेवा किसी ऐसे मसीहा के इंतजार में है जो इनका इलाज करवा सके। फजल टाउन में गुर्दों की बीमारी में मुब्तला ये खातून किसी मसीहा के इंतजार में है कि वो आए और इनका इलाज कराए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मलिक आबिद, सच टीवी, भलवाल, सरगोदा। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और देखते रहिए सच।